Good afternoon, students. We will start about the third lesson, applied history, which has already been taught to you all. Some of the students were absent that day, and so we have set over that I'm again giving you the preface or the just a common overview over this lesson. Now, what is applied history? The history which is being applied, which can be publicly applied in today's present world, is called an applied history. The meaning is, we say, it is a field to study the concern with the application of history for the benefit of the people in the contemporary and future times. Contemporary means during the periods in the future times. जो पहले का था, जो अभी का था, जो अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे लिए ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम कह सकते हैं कि आज क्या है, वो अप्लाइड हिस्ट्री है. दैट इज़ कॉल्ड एज अप्लाइड हिस्ट्री. Now, what is the uses of this method? Now, usage is, we can say, then the applied history is used on the means of philosophy, scientific, technological industries, commerce, management, industries, art and craft, and humanities. These are the places or the sectors where we can use this history. Yeah. Philosophy. The history of the philosophy helps in the understanding the origin of the various ideologies and intellectual traditions. It is given in the ideologies of the historical development, and philosophy needs a language in the medium. Philosophy के language क्या है? Medium is the language of the philosophy. In the expression, philosophy जो आप सोचते हो, जो आप समझते हो, उसको express करने की कौन सी है कि भाषा आपके लिए वो है, ज़रूरी है. We also understand the philosophical expansion. The knowledge of history in the language proves useful. The language should be supposed to be useful. Okay, now comes the next is history in used in science. History of science helps in understanding the chronological order and the scientific discoveries, inventions, theories, and can be also understand the cause and effect of chain that led to those discoveries and inventions. When we see, there are some different discoveries and inventions that can be expressed, they can be set up in chronological way. What is chronological way? Sequence wise, one after the other. कि 1940 में ये हुआ था, 1942 में ये हुआ था, 1943 में ये हुआ था, 47 में ये हुआ है. Then this is the chronological order. ओके. देन दिस एंड द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस की जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निकलती है, उसमें साइंस कितना ज़रूरी है. डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आया तो साइंस की तो बात आती है. वहाँ पर साइंस की जब ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड एज द साइंटिफिक व्यू ऑफ द अप्लाइड हिस्ट्री. साइंटिफिक व्यू ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री. वहाँ पर एक और चीज़ आती है, हम जैसे हमेशा बोलते हैं दैट इट इज़ ऑलवेज सेड दैट द नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. ये एक कहावत है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. जब हमारी ज़रूरतें बढ़ जाती है तो हम इंसान अपने आप सोचने में लग जाता है कि मेरी ये ज़रूरत है तो मुझे कुछ ना कुछ करके इसकी जुगाड़ करनी पड़ेगी, मुझे इसको निकालना पड़ेगा, मुझे कुछ करके उसके बंदोबस्त करना पड़ेगा. तो दैट बिकम्स गोज इन टू द इन्वेंशंस एंड द डिस्कवरीज. ओके, नाउ दीज एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन द ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेजेस. साइंटिफिक प्रूवन नॉलेजेस के साथ, इफेक्ट्स के साथ ही इनकी एग्जिस्टेंस क्लियर होती है. Understanding the and knowledge as the history of science helps in understanding the factors and facilitates the scientific disorders in scientific discoveries, inventions in the chronological way. I told you again, knowledge of history helps. अगर आपको हिस्ट्री के बारे में ज्ञान है, अगर आपको उसके बारे में पहले जानते हो कि किसी ने ऐसा कुछ डिस्कवरी किया था, उसका ये यूज़ हो रहा है, ऐसे ऐसे हम आगे कर सकते हैं कि अच्छा दिस इज़ नोन एंड प्रूवन फैक्टर, तो उसके आगे का स्टेप आप सोचो. इस तरह से हिस्ट्री हमारे लिए, हिस्ट्री के लिए साइंस और साइंस के लिए हिस्ट्री ज़रूरी हो जाती है. ओके, एज वी नो अबाउट डायनासोर्स, कि डायनासोर्स के हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हमें जानना है, जानते हैं हम. अब सिर्फ इतना है कि दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द अर्थ, that animal does not exist in the earth, but just because of discoveries we have come to know about dinosaurs, everything. Okay, now what they are doing is, actually we are just going back to the history, and the movies like no, that Jurassic Park and all these things have come. Why? Because we have just stepped behind to the movie, this
हिस्ट्री. नाउ टेक्नोलॉजी में हिस्ट्री का काम आता है. टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड द कॉजेज इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कमोडिटीज़, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक्सेट्रा. पहले ज़माने में प्लॉइंग होती थी, हाथ से करते थे इंसान, एनिमल्स यूज़ नहीं करते थे, खुद ही करते थे. देन दे यूज्ड एनिमल पावर. नाउ दे यूजिंग मैकेनिकल पावर्स. नाउ दैट इज़ ऑटोमेशन पावर्स. यस. नाउ दिस इज़ द डिफरेंसेस विच, अगर हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो हम ये इन्वेंशंस भी कभी नहीं करते. और इन इन्वेंशंस हम करने के लिए, ये इन्वेंशंस जो हम करने के लिए हिस्ट्री की ज़रूरत वहाँ पर ज़्यादा पड़ती है. ये हिस्ट्री देखकर वो इन्वेंशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं. Okay, knowledge of science and technology was very important at a very step, making the stone tools from agricultural production in the evaluation of the mankind. मतलब stone tools बनाने से लेकर आज तक की मैकेनाइज्ड वर्ल्ड में जो जो चेंजेस होता गया, वो इंसान ने हमेशा पिछला देखकर आगे का तय किया. पिछला देखकर आगे का तय. तो पिछला देखना मतलब क्या? हिस्ट्री को देखना. हिस्ट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अपडेवलपमेंट देखनी, अपग्रेडेशन देखना और उसके एक स्टेप आगे बढ़ना. Industrial commerce. Now we will go to the next point. The later of the advancement has promoted to the mechanism of production. It is necessary to know that history of technology in order to understand the development of mechanism and mutual dependency between the science and the टेक्नोलॉजी. हिस्टोरिकल टेक्नोलॉजी की एक दूसरे के साथ जो डिपेंडेंसी है, इसके ऊपर बेस करके सारे आगे के इन्वेंशंस होते गए हैं. Industry and commerce. Now, the field is mutual. The field of mutual social transaction expands the growth of industry and trade. Industry and trade रहा तो किससे बात आएगी? ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स के साथ आएगी. ह्यूमन बींग्स के साथ में आई तो उनकी सोशल कम्युनिटी, उनकी सोसाइटी में कम्युनिटी में बात आई तो कहाँ आया वो चीज़? वो अगेन इट गोज़ टू द सोशल matters. And when social matter comes into existence, again we go back to the historical matters, where history, how it has been, how the man has evolved himself, how he has gone through it. तो इस तरह से it is again related to industry and commerce. Okay, it was also promotes the continuous development of the network of cultural interaction. It is a integral part of industrial and the commercial managements. It is essential to understand the history to these processes. To understand history as well as the processes of this commerce and industry, we have to go back to the history part, and there is again a interdependency upon itself. The nature is the market of and commerce is the continuing changes. Nature is the market and commerce is continuous changing. Nature market कैसे है? आज आपने एप्पल खाया, जब पहला इंसान था उसने एप्पल खाया, थोड़े दिनों के बाद उसको एक पेरू के झाड़ मिला, वहाँ पर एक पेरू दिखा उसको, तो ये खाना चाहिए. इज़ इट बेटर? इट इज़ अ नेक्स्ट मिल. ओके, कल आज एप्पल के सीड से एक नया पेड़ बना, इसके एप्पल सीड से एक पेड़ आया, तो उस सीड के पेड़, काफ़ी सारे पेड़ और आ सकते हैं. काफ़ी सारे पेड़ आने के बाद बहुत सारे एप्पल्स आएंगे, तो इसका कॉमर्स स्टार्ट हुआ, इसको डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई, इसका मैंने ख़रीदा है ये. देन कम्स बार्टर सिस्टम. आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा है. बार्टर सिस्टम में आप अगर मुझे आप ये चावल देते हैं तो मैं आपको गेहूँ देती हूँ. अगर आप मुझे ये देते हो, मीन्स आर्म्स एंड एम्यूनिशंस देते हैं या फिर टूल्स देते हो, तो मैं आपको अर्दन पॉट्स बना कर देती हूँ. दिस इज़ द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम मतलब एक दूसरे से लेन देन. ये लेन देन आया तो क्या आ गया? ट्रेड एंड कॉमर्स आ गई. अब समझ में आई? इसमें आ जाती है ट्रेड एंड कॉमर्स की बात. अकॉर्डिंगली द नेचर ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज़ मेड कंटिन्यूस चेंजेस. To understand the development, it is necessary to study the history of cultural, social organization in economics institutes. To understand the history, इट इज़ कल्चरल सोशल की ज़रूरत ही है. कल्चर के तो हम पढ़ते ही हैं हिस्ट्री में. उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की, उनकी अगर हम कल्चर पढ़ते हैं तो उसके में कितना धन था उनके पास, हाउ मच दे वर रिच, वे दे रिच, वाई दे वर रिच, इफ़ दे आर रिच देन हाउ फ्रॉम वे दे आर रिच गेटिंग मनी, और फ्रॉम वे हाउ दे आर रिच. This is how, it's all related to one subject, why one subject can be applied into the different, and this all are being
taught in the research various work in the research it can be done. It cannot be I cannot state one this कि आज हमने ये काम कर लिया, ये हमारे हाथ में है. We cannot go and this happened, that will happen. We have to sow and find out everything in pen and paper. पूरी तरह से साबित करके दिखाना है. जब साबित करके दिखाना है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? ऑफ कोर्स रिसर्च. जब रिसर्च ज़रूरत पड़ी तो इन्वेंशन स्टार्ट होती है. ओके, मैनेजमेंट स्टडीज़. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द चेन ऑफ द प्रोडक्शन एज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द चेन ऑफ मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट, etc. It is essential to have the knowledge of similar function systems of the past. It is essential to understand the psychological character. किस तरह से वो इंसान ऐसे काम करता है. एक मटका बनाने वाला या फिर अर्दन पॉटर, कुम्हार जो बनाता है, उसकी क्या साइकोलॉजी रहती है, उसके क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, why he should do that, why and what is the source behind him, what is the thinking of behind him. That is the psychological study of the people and the working of the various things. Same way they are forming out different arts. जिस तरह से वो आर्ट करते हैं, वो आर्ट करने के बाद वो तो आर्ट उसने कर दिया, उन्होंने ड्राइंग कर दिया. उस ड्राइंग को समझने की ज़रूरत है. उस ड्राइंग करने के पीछे हेतु क्या है, उसके पीछे जानकारी क्या है, क्यों करते हैं वो ड्राइंग. उन्होंने एक बाइसन की ड्राइंग क्यों की है, उन्होंने एक एनिमल की ड्राइंग क्यों की है, उन्होंने गाय की ड्राइंग क्यों की है. मतलब उन्होंने गाय से जानते थे. बाइसन उनके पास तभी था. बाइसन मीन्स जिसको जंगली भैंसा कहते हैं, जैसे बाइसन. उनको जैसे पता चलता है, इस सब चीज़ों के बारे में पता था उनको. दैट सेज द art. This is how we read the situation, read the difference and the total existence of that thing, of the society. The art is not only painting and drawing. Art is the picture of that times society. उस टाइम के सोसाइटी का क्या ये था, क्या इमेज था, व्हाट वाज द ड्रेसिंग सेंस ऑफ द पीपल, व्हाट वाज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल, व्हाट वर्क्स दे यूज्ड टू डू, व्हाट कमोडिटीज, व्हाट थिंग्स दे यूज्ड टू यूज, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्नामेंट्स दे यूज्ड टू यूज. दीज थिंग्स आर ऑल केप्ट इनटू द आर्ट मैटर. Okay, now comes the humanities. Humanities is the talking about the relationship between the two people. एक आदमी एक औरत. ओके, इनकी रिलेशनशिप कैसे कैसे बनी, इनकी फिर फैमिली कैसे बनी. देन दे केम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ चिल्ड्रन. देन चिल्ड्रन में कितने जन थे. देन डू दे देयर फादर्स एंड मदर्स यूज्ड टू स्टे टुगेदर, डू दे हैड देयर फैमिली बॉन्डिंग्स, व्हाट इज द फेस्टिवल्स दे यूज्ड टू डू. दीज ऑल थिंग्स आर कमिंग अंडर द humanities. This now all disciplines supposed to be have the origin of psychology. Philosophy जो है उसके पीछे एक ही थी कि इंडियन सिर्फ हिस्ट्री की एवोल्यूशन, इंसान की ग्रोथ. जब हम कहते हैं कि बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन, जब हमें इंसान जो स्टोन एज मैन से आया था, उस ज़माने से लेकर आज तक ऊपर जाकर वो जिस तरह से ग्रोथ करता गया, जिस तरह से वो डेवलप करता गया, उस तरह से उसकी क्या साइकोलॉजी थी, क्यों उसने ऐसे डेवलपमेंट की, क्यों अलग तरीके से नहीं गया. वाई डिड दे काउंट आउट विथ फायर, वाई डिड दे गेट अफ्रेड ऑफ फायर और द लाइटनिंग्स, व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट वाज द थिंग. दिस केम ऑन गिविंग अस द historical stories. With the historical stories we get this. The ancient people all over the world speculated over the understanding the relationship between the human universe, human existence. सिर्फ आपस की रिलेशनशिप नहीं थी, यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ उनका क्या रिलेशनशिप था. हमने डॉग को ही क्यों पाला, एक डायनासोर को क्यों पाल के नहीं रखा उन्होंने. एक डायनासोर को क्यों वो आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इट वॉज डेंजरस फॉर देम. उन्होंने ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को क्यों उन्होंने कब्जा करने की कोशिश क्यों नहीं की. ये एनिमल्स ही टाइगर, लायन, इनको टेम करने की कोशिश क्यों नहीं की. उन्होंने सिर्फ डॉग्स, डोंकीज, इनको पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, इनको ही क्यों लेकर आए हैं. दिस वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन वर्ल्ड एंड द अदर वर्ल्ड्स विच वी हैड. ओके, it gave the rise to the various mythological stories. Adam and Eve, the mythological story. We don't know who was Adam, who was Eve, what was the reason, but there was a story. There is a story rather. Then Ramayana, the Krishna story. Then we had a number of these kind of stories about the origin of the world. The Noah's Ark.
यू ऑल नो नोवाज आर्क की स्टोरी, सबको पता है। नोवाज आर्क जो हिंदी में हम बोलते हैं जग डूबी हो जाएगी, पूरी जगत डूब जाएगा, बह जाएगा। तो उन्होंने ये हमारे कहानियों में ये भी बताया जाता है कि उसने जब सारे स्पेसिमेंट्स रखे अपने बोट में उसको सब भगवान जी ने कहा था कि आप सब ऑलमाइटी के ऑर्डर आया था कि सारे एक दो एनिमल्स आप उसके साथ रखो। पर वो डायनासोर इतना विराट था, इतना बड़ा भव्य था कि उसको पकड़ने के लिए वो संभव नहीं था, और वो पकड़कर लाकर बोट में रखना भी संभव नहीं था। इसीलिए डायनासोर पूरा लुप्त हो गया, इसे ऐसे कहते हैं। पर आजकल के ज़माने में ऐसा हम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली बिकॉज पीपल आर किलिंग देम, इसलिए वो डेथ गेट्स एक्सटिंक्टेड। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब वो जगत से निकल चुके हैं और दे आर नो वेयर एनी वेयर, उनके और है ही नहीं, एंडेंजर्ड है, दे आर नॉट गेटिंग है। ओके, वी आर नॉट गेटिंग एनी मोर ऑफ देम. So this is what the stories, this mythological stories, these stories have made by the philosophical ways. And the roots of philosophical pondering of the found in these mythological stories. Various disciplines of the humanities and the theoretical foundation is based on the philosophical theories. Only historical knowledge can be played understanding in the development stage. Okay, this can be only understood in the development stage. Now, and the applied history in today's world. Why do we need to apply this history in today's world? Now इसके जो छोटे से points है उसके बारे में हम आज पहले बात कर लेते हैं. In today's world we are having it to divide, we can divide it into two. We can divide it into how to. The applied is tangible and intangible. Tangible culture कौन सा है? जो चीज़ें हम देख सकते हैं, ताजमहल हम देख सकते हैं इसलिए टेंजिबल है, डिफरेंट पेंटिंग्स हम देख सकते हैं इसलिए टेंजिबल है. जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं उस चीज़ को हम टच करके महसूस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज टेंजिबल एग्जिस्टेंस. नाउ हियर इट इज़, मैंने आप लोगों को जो क्लिपिंग्स भेजी थी उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से एक बार वही पढ़ती हूँ. कल्चरल हेरिटेज, इट इज़ एन आर फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन. देखिए, एंशियंट साइट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिक्राफ्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट, sculptures, painting, etc. Intangible, oral traditionals, language traditionals, traditional knowledge, social customs, rituals. राखी बांधना किसने सिखाया था? मम्मी ने सिखाया था, उनके मम्मी ने उनको सिखाया था. हमें क्या ज़रूरत है? हमें नहीं मालूम था कि राखी क्यों पहनते हैं, क्यों करते हैं. ये चीज़ें हमने हमारे एंसेस्टर्स से सीखा है, हमारे पूर्वजों से सीखा है. ओके, नाउ सेलिब्रेटिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स. व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली लाइक दिस? हम नहीं दिया लगाकर क्यों? तभी अंधेरा था, अब हम दिवा क्यों लगाए? अभी तो नहीं है. पर ये कहानी क्या है कि राम आते हैं घर पर, तभी वो दिवाली ये थी. और लक्ष्मी जी की पूजा उसी दिन इसलिए की जाती कि राम के वाइफ जो सीता थी, सीता माता को हमने लक्ष्मी की तरह अपने घर में वापस प्रस्थापित किया गया था. उनको वो बहू, अयोध्या की बहू को फिर से प्रस्थापित किया गया था, इसीलिए हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं. ये सब माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं. Okay, communities group who represented such traditions and customs in the skills. These were the traditions and customs. Understood? Now, सेकेंड इसके साथ में क्या आता है? नेचुरल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज के साथ किसके साथ रिलेटेड है? इट इज़ विद द जोग्राफिकल इफेक्ट्स, द फ्लोरा, द फोना, द इकोलॉजी, द जियोमॉर्फिक. जो जोमेट्रिकल, जियोमॉर्फिक मीन्स जो जोग्राफिकली डेवलप हुआ है. ओके, वी हैव द स्टोन एज मैन. जब पहले का ऐसा था कि सिर्फ धीरे 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 अर्थ ने भी अपना शेप बहुत धीरे सालों के बाद वो बदला है. अर्थ ने भी बहुत अपने अपने डिफरेंट शेप्स, अपने डिफरेंट चेंजेस आए. ये सब चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स, इस सब चीज़ों की स्टडी हिस्ट्री के साथ. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच क्रूशल फॉर द सस्टेनिंग द फ्लोरा एंड द फोना ऑफ द पर्टिकुलर रीजन. एक रीजन हमने पढ़ लिया, तब उसकी हिस्ट्री में जाते हैं, उसके कल्चर में जाते हैं. उसके बाद हमने अगर समझ लिया कि हमने डिंडोरी जैसे शहर को लिया, उसके इसमें तो उसमें कौन से ये ज़्यादा होते हैं, कौन से पेड़ पौधे होते हैं, कौन से पेड़ पौधे को यहाँ पर हमने लीची का पेड़ लगाया तो होगा क्या? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन उसको सपोर्ट नहीं करता. तो लीची कहाँ आएगा? वो बिहार में होगा. दिस इज़ हाउ द स्टडी ऑफ फ्लोरा, फोना, कस्टम्स, culture has come into the existence of natural heritage. Okay, now without reading the textbook, I will just go towards the next part of this is the management of cultural heritage. Why? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी?
ठीक है, कल्चरल हेरिटेज है, ये है, तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका फिर से हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल गवर्नमेंट लेवल एंड वॉलेंट्री लेवल. These are the 3 levels. First is UNESCO. UNESCO you all know, UN, WHO का एक UN का एक बहुत अहम हिस्सा है यूनेस्को. ये सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज को संभाल के रखने की ज़रूरत है. आज मुझे ताजमहल पसंद नहीं, मैं जाकर तोड़ सकती हूँ ताजमहल? नहीं. काला राम मंदिर में मुझे हो सकता है किसी को काला राम मंदिर मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो क्या रखा हुआ है, काला राम आप कहते हो, मैं कहती हूँ, बाकी लोग नहीं कहेंगे. आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट वांट टू मेक अ बिग बिल्डिंग हियर, सो आई विल जस्ट गो एंड ब्रेक इट. वी कैन नॉट डू दिस because it is our natural heritage, it is our world's heritage, it is a new which cannot be made by today. एक दिन में हम हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए रख कर भी हम ताजमहल फिर से बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं. इट इज़ नॉट सो ईजी. हाँ, खुद उनके बेटे ने कोशिश की औरंगाबाद में बीबी का मकबरा अपने नाम बीवी के लिए बनाने के लिए. बना पाए वो? नहीं. इट कैन नॉट बी मेड, इट वॉज नॉट पॉसिबल. वो अभी भी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है. ओके, नाउ नेशनल, दिस इज़ द बेसिक थिंग्स. उसको इंटरनेशनल लेवल में उसको मान्यता दी गई, उसको लेवल एक्सेप्टेंस कराया गया. नाउ इन नेशनल लेवल जब हम चलते हैं, मैनेज बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे. व्हाट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे? जो ये हिस्ट्रीज़ को, जब एक्सकैवेटेड थिंग्स जो नीचे से हमें मिलती है, जो हमें पुरातत्व की चीज़ें जो मिलती है, उन चीज़ों के बारे में स्टडी करना, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट का काम है. इट इज़ अ टोटल साइंस, it is a total part of science which history gets divided into. Okay, then इट हैज़ अ वॉलेंट्री इफेक्ट. इसको संभालने के लिए अलग अलग हिस्सों में वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी है. जैसे इनैक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एनजीओ है जो प्राइवेटली चलता है. ना वो गवर्नमेंट का है, ना वो वर्ल्ड रिकग्निशन का है. वो प्राइवेटली चलता है और उस चीज़ को वो बढ़ाते हैं, उसको हेल्प करने के लिए, उसको करने के लिए वो एक्सेप्ट करते हैं और उसकी सराहना करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं. ओके, द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर. ये बहुत ज़रूरी है. हमारे आजकल कोई भी हिस्टोरिक प्लेस पर आप जाओ, कोई वहाँ पर लिखा है कि दीवारों पे कुछ लिखना नहीं है, उसको ख़राब नहीं करना है, उस पर आप हाथ नहीं लगाओगे, डोंट टच इट, उसको हम बाइंड कर दिया जाता है. क्योंकि ये टचिंग, ये जो कॉन्टैक्ट्स है, इसके कारण से वो चीज़ें ख़राब हो, क्योंकि वो कितने हज़ारों करोड़ों साल पुराने हैं, वो हमें नहीं पता है. वो हज़ारों साल होने के कारण उसके अंदर उसकी सबकी वेदरिंग इफेक्ट्स, जो वेदर के इफ़ेक्ट्स है उस पर, पत्थरों पर, उनके चुना पर, उनके काम पर वो होता रहता है और वो ख़त्म होता जाता है, वो तक क्षय हो जाता है और क्षय हो जाती है. इसी चीज़ को रोकने के लिए, जस्ट टू स्टॉप दिस, इसके लिए कहा जाता है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन. टू बी रिजर्व दैट थिंग, टू जस्ट स्टॉप इट एंड प्रिजर्व इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. क्योंकि आज हम नहीं करेंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ताजमहल नहीं देखने को मिलेगा, क्यों? ख़राब हो जाएगा, वो वाइट नहीं रहेगा. ताजमहल के आसपास के बहुत सारे कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़ को उन्होंने बहुत बैन कर दिया कि यू कैन नॉट. क्योंकि क्या होता था, उसमें से फैक्ट्री से इमिट हुए जो धुआं है वो जाके वो जो वाइट कलर का बिल्डिंग था, जो वाइट कलर के वाइट स्टोन्स थे, जो मार्बल स्टोन्स के, उनको ख़राब कर रहे थे. तो दे वेर बीइंग शिफ्टेड टू समवेयर अदर प्लेसेस दैट दिस डज नॉट गेट्स हैम्पर्ड. इवन दे शुड नॉट बी हैम्पर द इंडस्ट्रियल इफेक्ट. इंडस्ट्री को भी बंद नहीं कर सकते. इट इज़ आज के ज़माने की ज़रूरत है वो, तो इसीलिए उन्होंने उनको शिफ्ट करके अलग जगह पर कर दिया गया. Okay, they need to duly aware the cultural, social and political historians and the heritage of site. Principles are applied to the history and the useful of creating awareness among them. अभी मैंने वही कहा कि सबको ही अवेयर, जैसे हम आज कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं. इस किसी ज़माने में हमने स्पेनिश फ्लू नाम से कोविड-19 पहले भी आया है. इट वॉज नेम एज स्पेनिश फ्लू, स्पेन में पहले हुआ था. उस चीज़ का अवेयरनेस वो हम हिस्ट्री में वो पढ़कर, वो देखकर, समझकर अभी हम उसको अप्लाई कर रहे हैं. बहुत सारे व्हाट्सएप में ये मैसेजेस आ रहे हैं कि दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट, देन इट वाज अ बैक्टीरिया, इट वाज अ virus, whatever it is. Then it is how we are changing, we are doing it and we are researching over it, and now we are trying to get an what we are waiting for. We are waiting just only one thing, कि हमारे किसी तरह से वैक्सीन निकल कर आ जाए. अगर वैक्सीन आ जाता है तो we will be secured, the human beings can come out of their places and it will be secured. The operation is necessary for the conservation and preservation and the development of heritage. The site can be handled without causing any change into it.
एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट रूल क्या है उसकी, कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं हम। जो जैसा बना है उसको सिर्फ वैसे ही प्रिजर्व करना है, उसको कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, उसको कोई भी तरह से हम बदल नहीं सकते हैं। द लोकल सोशल का स्ट्रक्चर एंड द साइकोलॉजिकल ऑफ द लोकल पीपल, जब लोकल पीपल के वहाँ पर काम कर रहे हो तो लोकल पीपल को आप उधर इंक्लूड। आज अगर हमारे देवी माता में जहाँ पर आप लोग रहते हो वणी में, उसी तरह से देवी माता गढ़ के वहाँ पर मंदिर में कोई भी चेंजेस करना है तो वहाँ के लोगों को पूछ कर करना है या डायरेक्ट जाके तोड़ फोड़ कर लेना है, संभव ही नहीं, आप हाथ ही नहीं लगा सकोगे। तो वहाँ के लोगों को आपको साथ में कॉन्फिडेंस में लेकर उनके साथ में, यू हैव टू ब्रिंग देम इनटू कॉन्फिडेंस, यू हैव टू गेट देम इनटू वर्क एंड देन वी कैन डू इट. Now, third thing is due precautions should be taken without hurting the sentiments of the local people. I just told you now कि उनको हर्ट करके आप कर ही नहीं सकते. Everybody will agitate and everybody will stand behind you. Against you, sorry, everybody will standing against you, so nobody will support you. So that is why you cannot hurt anybody's sentiments. Next comes the participation of local people in the projection of facilitate. We have to take the local, कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, अगर आपको वनी में कोई प्रोजेक्ट करना है तो क्या आप रोज़ नासिक से लेकर जाकर लोगों को रखोगे? क्या रोज़ बॉम्बे से लोगों को रख कर ये करोगे? क्या आपका एक्सपेंस पर ये परवड़ेगा? नहीं परवड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लोकल पीपल का हेल्प लेना पड़ेगा। कोई जेसीबी चलाने वाला अगर कुछ करना है, ऊपर काम करना है वनी शहर में, तो वनी शहर में काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कहोगे? नासिक से किसी ये लेकर जाएंगे, पर क्या आप कहेंगे कि बॉम्बे से लेकर आओ या अहमदाबाद से कोई लेकर आओ और जो फिर वही सिर्फ ये क्रेन्स चला सकता है, वही सिर्फ ये कर पाएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर रेगुलर वन. The systematic plan and design and employ the local skills, creativity in the way of the better opportunity. कोई भी चीज़ करने के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी करने के लिए, आपको उसकी अच्छे से करने के लिए, आपको उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए आपको लोकल पीपल्स की अपॉर्चुनिटी देनी ही पड़ेगी. लोकल पीपल को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी. द नाउ एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सपोर्टिव इन द डिसीजन ऑफ मेकिंग regarding the prospective legal provisions and the public policies and the following fields. Museums and archives. Archives are the records. Archives are the records which हमें पता है ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ इसको, पर वो records, real records जो मेंटेन करते हैं, that is called the museums of museums रखते हैं. You know what is museums? सब कहते हैं history and museum is the two hands together. That means हिस्ट्री पढ़नी है तो म्यूजियम में जाके पढ़ो, क्योंकि हिस्ट्री जैसे अब साइंस पढ़नी है तो साइंस के लैब में जाके पढ़ो, तो उसी तरह से हिस्ट्री पढ़नी है तो म्यूजियम में जाके पढ़ो. प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, कोई भी साइट में जाकर अगर आप जाते हो तो उसकी बिना तोड़ फोड़ किए, बिना उसको खोदा खोदी किए, उसको जैसा है उसी तरह से उसकी एग्जिस्टेंस देखकर पढ़ाई करना. टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इसकी सबसे ग्रोथ क्या होती है? टूरिज्म बढ़ता है. आज ताजमहल देखने के लिए साल में लाखों लोग आते थे, इस साल नहीं आए पर अब तक आते हैं. कश्मीर देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं. हाँ, तो देयर हॉस्पिटैलिटी, उसके हॉस्पिटैलिटी मतलब उसके लिए होटल्स बिजनेस, उसके साथ बहुत सारे बिजनेस. देन राजस्थान में अगर घूमने आते हैं तो राजस्थान की आर्टी क्राफ्ट्स आती हैं, हैंडीक्राफ्ट जो वर्क है वो सब आता है आगे. तो ये सब बिजनेसेस चलता है, इसके पीछे साथ एक दूसरे के साथ जो जुड़ा हुआ है ये सारे बिजनेसेस चलता है ना. एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, आज कोई भी अच्छी चीज़ अगर राजस्थान में होती है तो तुरंत कौन पहुंच जाता है? एनडीटीवी. तुरंत कौन पहुंच जाता है? आज तक एंड एन नंबर्स ऑफ चैनल्स. व्हाई? टू गेट दैट नॉलेज, टू गेट टू स्प्रेड इट आउट. दिस इज ऑल्सो अ बिजनेस, मास मीडिया. फाइन. नाउ वी विल कम टू द लास्ट पार्ट of this lesson. Every field is mentioned to require the expert professionals and specialized skilled. For examples, architects are needed, engineers are needed, archaeologists are needed, museum curators are needed, sociologists are needed, archive managements are needed, photographers are needed, etc., etc., etc. There are n number of people who are working on this and these helps are needed. Of course, the just a representative list हमने बताई, ये सिर्फ जो है, जो गिने चुने प्राइम ये है उनकी बातें हमने की. बाकी तो उसके नीचे काम करने वाले कितने मोर टैब्स हैं. They help the experts in the form of fields required. These expert needs adequate knowledge and ancient sites and historical backgrounds. And the structural remains the articraft, so that the structure remains the same. Projects in the field of applied
history can be created in the various opportunities or for these professionals. In this lesson, we have learned about the role of applied history. Now, public training programs and understanding the process of the history, the creating social awareness regarding the conservation and the preservation of the culture, nature and natural heritage, using knowledge knowledge of history for the purpose of enhance the personal skills of people and develop industrial commercial fields to carry out the preparatory work and plan out effective implementation of heritage projects, etc. Now, it is essential to avoid vandalism. Vandalizing means कोई भी चीज़ की अवमानना हो नहीं हो या फिर कोई भी चीज़ का मिसयूज ना हो, that should be seen. Okay, historic public places and ensure that they are preserved in the benefit of future generation. एक ही reason है, just we are the, our parents have given us, they have carried and given it to us, we will give it to y'all and you have to give it to your next generation. This is only one reason. Now, dear children, complete the question answers of both the lessons, and dot at 7 o'clock I will open up the दिस ग्रुप की, ये मैं खोल दूंगी, आप लोग सारा अपना उसमें भेज दीजिए. दोनों भी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स आप लोग उसमें लिखेंगे, फ़ोटोकॉपी करेंगे और फिर उसकी भेज देंगे मुझे, फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजेंगे. More another thing is, dear students, I want everybody's attendance. I don't know how many are present, or if you will just give your names, or else you will just write your roll numbers. You have the 9th standard roll numbers also, I think so, that will also do. Roll number 1, roll number 2, I want everybody's name and the roll number, and with along with your pictures. Okay, thank you, bye.